Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। In our last broadcast, we began a new series of messages called You Want Me to Do What? अपने पिछले प्रसारण में हमने एक नई संदेश श्रृंखला को प्रारंभ किया था जिसका नाम है तू क्या चाहता है कि मैं करूं। It is taken from the book of Joshua in the Old Testament of the Bible. ये बाइबल में से पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक पर आधारित है। In this series of messages, we are learning how to follow the call of God in our lives. इस संदेश श्रृंखला में हम अपने जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट का पालन करना सीख रहे हैं। And the call of God upon our lives sometimes causes us to ask the question, You want me to do what? और हमारे जीवनों पर परमेश्वर की बुलाहट कई बार हमारे मन में इस प्रश्न को लाती है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? That is why I used a question to name this series. इसीलिए मैंने इस श्रृंखला के नाम के लिए एक प्रश्न को चुना। In our first message, we saw that stepping up to God's call in our lives is answer number 1. हमारे पहले संदेश में हमने देखा था कि अपने जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट पर आगे आना उत्तर नंबर 1 है। Now, let's get into today's message. अब आइए आज के संदेश पर चलते हैं। Around you, there are many people, but in reality, they are living deep into the enemy's territories. आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वास्तव में वो शैतान के इलाके में जी रहे हैं। They are living in Satan's domain. वो शैतान के अधिकार में जी रहे हैं। Many of them are living deep in the territories that most of us lived in before Christ. उनमें से अधिकतर उसी लंबे क्षेत्र में जी रहे हैं जिसमें हम में से कई मसीह में आने से पहले रहते थे। Let me make this very clear. Please do not misunderstand me. मैं इसे स्पष्ट करके बताता हूं, कृपया मुझे गलत न समझें। Your non-Christian co-workers and your non-believing fellow students, आपके गैर विश्वासी सहकर्मी और आपके गैर विश्वासी सहपाठी, your non-Christian neighbors are not your enemies. और आपके गैर विश्वासी पड़ोसी, ये सब आपके शत्रु नहीं हैं। They may be opposing you, but they are not your enemies. वो आपका विरोध करते होंगे लेकिन वो आपके शत्रु नहीं है। They may be living under the control of the enemy's power. हो सकता है वो शत्रु की शक्ति के नियंत्रण में जी रहे हों। They may be enslaved by the enemy's dictates. शायद वो शत्रु के तानाशाहों के गुलाम हों। They may have even adopted the enemy's characteristics. हो सकता है कि उनमें शत्रु के गुण आ गए हों, But they are not your enemies. परंतु वो आपके शत्रु नहीं है। When you see your work as God's gift to you, जब आप अपने काम को परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक उपहार के रूप में देखते हैं, when you see your work as God's mission field for you, जब आप अपने काम को आपके लिए परमेश्वर के काम के स्थल के रूप में देखते हैं, when you see your neighborhood as God's call upon your life, जब आप अपने पड़ोस को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट के रूप में देखते हैं, when you see your surroundings as your God-given opportunity to penetrate deep into Satan's territory, जब आप अपने आसपास को शैतान के क्षेत्र में घुसने के लिए परमेश्वर की ओर से दिए गए एक अवसर के रूप में देखते हैं, then you are going to see the people there as potential brothers and sisters in Christ. तब आप वहां पर लोगों को मसीह में अपने संभावित भाई और बहनों के रूप में देखेंगे। You will view them with sympathy. आप उन्हें करुणा के साथ देखेंगे। You will view them with compassion. आप उन्हें तरस के साथ देखेंगे। You will view them with love and longing to help set them free. आप उन्हें प्रेम और इस इच्छा के साथ देखेंगे कि उन्हें स्वतंत्र करने में आप उनकी मदद करें। In the second message from the book of Joshua, You Want Me to Do What? यहोशू की पुस्तक में से तू क्या चाहता है कि मैं करूं में से इस दूसरे संदेश में The first thing was to step up to God's call on your life. पहला काम था आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पर सामने आना। The second thing is to go deep into the enemy's territories. दूसरी बात है शैतान के क्षेत्रों में अंदर तक घुस जाना। The spies went into the enemy land जासूस शत्रु के देश में आए and they saved the one person who wanted to be saved as well as her family. और उन्होंने एक जन को बचा लिया जो बचना चाहती थी और साथ ही उसके परिवार को भी। Her name was Rahab. उसका नाम था रहाब। These two spies in the book of Joshua understood their job was an opportunity from God to help others. यहोशू की पुस्तक में इन दो जासूसों ने ये माना कि उनका काम दूसरों की सहायता करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक अवसर था।
And my listening friend, I want to tell you that wherever you spend the majority of your time and the majority of your hours, that's your mission field. और मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप अपना अधिकतर समय बिताते हैं, वही आपकी सेवकाई की कर्म भूमि है। Can you imagine if these two spies had gone into enemy's land and said to themselves, why don't we just blend with these people? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये दो जासूस शत्रु के देश में जाकर कहते, क्यों नहीं हम इन्हीं लोगों में मिलकर रहते? Why don't we just strike a deal with these people? क्यों ना हम इन लोगों के साथ कोई सौदा कर लें? Oh, but they didn't. और परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। Why? क्यों? Because they understood that they were on a mission. क्योंकि वो समझते थे कि वो एक मिशन पर हैं। These spies knew that they were sent there for a purpose. ये जासूस जानते थे कि उन्हें एक उद्देश्य के लिए वहां भेजा गया है। These spies knew that they were there to fulfill God's plan for their lives. ये जासूस जानते थे कि वो वहां अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे थे। These spies knew that they were there to fulfill God's plan for the future of his people. ये जासूस जानते थे कि वो वहां परमेश्वर के लोगों के भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए थे। And in many ways, your workplace, your school, or your neighborhood is your call and mission. और कई प्रकार से आपका कार्यस्थल, आपका स्कूल या आपका पड़ोस ही आपकी बुलाहट और मिशन है। That's God's plan for your life. ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। That is God's plan to save someone where you are. ये परमेश्वर की योजना है कि जहां पर आप हैं, वहां कोई ना कोई उद्धार पाए। And because these spies focused on their mission, और क्योंकि इन जासूसों ने अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखा, they were able to save Rahab and all of her family from destruction. वो राहाब और उसके पूरे परिवार को विनाश होने से बचा सके। Now here are some mistakes that some people make. अब ये है कुछ गलतियां जो कुछ लोग करते हैं। Some people think that they must purify themselves before they approach God for salvation. कुछ लोग सोचते हैं कि इससे पहले कि वो उद्धार के लिए परमेश्वर के पास जाएं, उन्हें खुद को शुद्ध करना आवश्यक है। But that logic is contrary to the pure grace of God. परंतु ये तर्क परमेश्वर के शुद्ध अनुग्रह के विपरीत है। Remember, Jesus died for us while we were yet sinners. याद रखें, जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा। Other people feel that they need to look, act, dress, and speak and live a certain way before they can be saved. कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें एक विशेष रूप में दिखना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना और बोलना चाहिए इससे पहले कि उन्हें उद्धार प्राप्त हो। No. नहीं, God saves anyone who asks his forgiveness and makes him the Lord of their life. परमेश्वर किसी भी ऐसे जन को बचाता है जो उससे उद्धार मांगता है और उसे अपने जीवन का प्रभु बनाता है। God saves the very ones we think are impossible to save. परमेश्वर उन्हीं को बचा लेता है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उन्हें बचाना असंभव है। God saves those whom we think are beyond reach. परमेश्वर उन्हें बचाता है जो हम सोचते हैं कि पहुंच से बाहर हैं। Jesus saved the prostitutes and the tax collectors. यीशु ने वेश्याओं और महसूलियों को बचाया। Jesus saved the ones that the religious leaders thought unworthy of salvation. यीशु ने उन्हें बचाया जिनके विषय में धार्मिक अगुओं ने सोचा कि वो उद्धार के योग्य नहीं थे। The very fact that God chose to save a harlot by the name of Rahab and her household should be an encouragement to all of us to know that God's grace can be for the criminal. यही तथ्य कि परमेश्वर ने राहाब नामक एक वैश्य और उसके परिवार को बचाने का निर्णय किया, इसी से हम सबको ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि एक अपराधी पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है। God's grace can be for the rebellious. परमेश्वर का अनुग्रह विद्रोही के लिए भी हो सकता है। God's grace can be for the most unlikely person. परमेश्वर का अनुग्रह सबसे असंभव जन पर भी हो सकता है। And don't ever forget that one of the greatest examples of God's grace was to a brutal man who persecuted the early church. और ये कभी ना भूलें कि परमेश्वर के अनुग्रह का एक महानतम उदाहरण उस क्रूर व्यक्ति से मिलता है जिसने प्रारंभिक कलीसिया पर अत्याचार किया। His name was Saul, who later changed his name to Paul and became the great apostle of Christ. उसका नाम शाऊल था जिसने बाद में अपना नाम बदल लिया और मसीह का एक महान प्रेरित बना। And Paul ended up writing nearly one half of the New Testament. और अंततः पौलुस ने तकरीबन आधा नया नियम लिखा। Your boss may be harsh. आपका अधिकारी कठोर हो सकता है। Your co-worker may be living an immoral lifestyle. आपका सहकर्मी शायद अनैतिक जीवन जी रहा हो।
Your neighbor may be angry with you all the time, आपका पड़ोसी शायद हमेशा आप पर क्रोधित रहता हो, but none of these desperate people are beyond God's grace. परंतु इन बेचैन लोगों में से कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से परे नहीं है। And God placed you in that work environment, school or neighborhood, so that you can show them what the Christian life is all about. और परमेश्वर ने आपको उस कार्य, स्कूल या ऐसे पड़ोस वाले वातावरण में रखा है ताकि आप उन्हें दिखा सकें कि मसीही जीवन आखिर है क्या। But some of you may be asking, was it right for Rahab to lie in order to protect the spies? परंतु आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, क्या जासूसों को बचाने के लिए राहाब का झूठ बोलना सही था? The answer is no. उत्तर है नहीं। It is never right to do the wrong thing for the right reason. सही कारण के लिए गलत काम करना कभी भी सही काम नहीं है। The Bible merely reports that Rahab lied, but the Bible does not approve of it. बाइबल मात्र इस बात को बताती है कि राहाब ने झूठ बोला, लेकिन बाइबल इसका समर्थन नहीं करती। And don't forget that Rahab had not yet experienced God as her Lord. और ये न भूलें कि राहाब ने अभी परमेश्वर का अपने प्रभु के रूप में अनुभव नहीं किया था। At this point of her story, she has only heard of God. उसकी कहानी के इस मोड़ पर उसने परमेश्वर के विषय में केवल सुना ही था। And just like Rahab, there are all around you people waiting to hear the good news of Jesus Christ. और राहाब के समान ही आपके चारों ओर लोग हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने की प्रतीक्षा में हैं। Look at the book of Joshua chapter 2 verses 9 and 10. यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय के 9 और 10 पदों को देखिए। She said, I know that the Lord has given his land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. उसने कहा, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने यह देश तुम लोगों को दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। Rahab knew that a nation of former slaves has no strength of its own to defeat the Canaanites. राहाब ये जानती थी कि भूतपूर्व गुलामों की एक जाति में कनानियों को हराने के लिए कोई अपनी सामर्थ्य नहीं थी। But Rahab heard about their mighty God. परंतु राहाब ने उनके बलवंत परमेश्वर के विषय में सुना था। And now she is delighted that she is meeting two of his children for the first time. और अब वो आनंदित थी कि वो पहली बार उस परमेश्वर के 2 बच्चों से मिल रही थी। I have no doubt that wherever you are in your environment, there are people all around you who are in pain and anguish. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपने वातावरण में चाहे कहीं भी हैं, वहां ऐसे लोग चारों ओर हैं जो पीड़ा और वेदना में हैं। There are people all around you who are in torment and sorrow. आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो कलेश और शोक में हैं। There are people all around you who are in loneliness and fear. आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन और भय में हैं। And these people are saying to themselves, और ये लोग अपने आप से कह रहे हैं, I heard that Jesus saves. मैंने सुना है कि यीशु बचाता है। I heard that Jesus heals. मैंने सुना है कि यीशु चंगाई देता है। I heard that Jesus transforms lives. मैंने सुना है कि यीशु जीवनों को बदलता है। I heard that Jesus gives strength to the weak. मैंने सुना है कि यीशु निर्बल को बल देता है। I heard that Jesus sets the captive free. मैंने सुना है कि यीशु बंधुओं को स्वतंत्र करता है। I heard that Jesus binds the brokenhearted. मैंने सुना है कि यीशु टूटे मन वालों को चंगा करता है। I heard that Jesus forgives the burden of guilt and sin. मैंने सुना है कि यीशु दोष और पाप के बोझ को क्षमा करता है। And that person is waiting for you to speak a word of healing and forgiveness. और वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि आप उससे चंगाई और क्षमा के शब्द कहें। They are waiting for you to say that the one you've heard about is the one I have experienced personally. Let me tell you all about him. वो आपकी ये कहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जिसके बारे में आपने सुना है उसी को मैंने व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया है, मैं आपको उसके विषय में बताता हूं।
Because Jesus set me free from failure and inadequacy. क्योंकि यीशु ने मुझे नाकामी और अयोग्यता से छुड़ाया है। Jesus set me free from worry and anxiety. यीशु ने मुझे चिंता और परेशानी से छुटकारा दिया। Jesus set me free from fear and dread. यीशु ने मुझे भय और भयानकता से छुड़ाया है। Jesus forgave all my sins and took my guilt away. यीशु ने मेरे सब पाप क्षमा करके मेरे सारे दोष को हटा दिया। Jesus put my feet on a solid rock. यीशु ने मेरे पांव सख्त चट्टान पर टिकाए हैं। Jesus clothed me with a spiritual garment that can never be taken away. यीशु ने मुझे ऐसा आत्मिक वस्त्र पहनाया है जिसे कोई छीन नहीं सकता। And just like God saved Rahab without regard to the sinful life that she lived before, और बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने राहाब को बचा लिया, चाहे पहले उसने कितना ही पापमय जीवन क्यों नहीं जिया था, God is ready to forgive the sins of all repentant people. परमेश्वर उसी रीति से सब पश्चातापी पापियों के पाप क्षमा करने के लिए तैयार है। No matter what a person has done in the past, चाहे किसी व्यक्ति ने अतीत में कुछ भी क्यों न किया हो, God is ready to give eternal life to those who ask for it. परमेश्वर उन्हें जो मांगते हैं अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। God is ready to dispense mercy for those who cry for it. परमेश्वर उन लोगों पर दया को उंडेलने के लिए तैयार है जो इसके लिए पुकारते हैं। God is ready to welcome all who seek Him with all of their heart. परमेश्वर उन सब का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है जो अपने पूर्ण हृदय के साथ उसको खोजते हैं। That same grace that worked in the heart of a Canaanite prostitute is available for all who would ask for it. वही अनुग्रह जिसने उस कनानी वैश्य के हृदय में कार्य किया, सबके लिए उपलब्ध है जो इसे मांगते हैं। And like God's people in the Old Testament, we live in a culture that is controlled by God's great enemy Satan. और पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के समान हम भी ऐसे समाज में रहते हैं जिस पर परमेश्वर के सबसे बड़े शत्रु शैतान का नियंत्रण है। And that is why you and I must invade his territory. और इसीलिए आपको और मुझे उसके इलाके में प्रवेश करना आवश्यक है। We cannot just hide in the safety of our home, हम अपने घरों की सुरक्षा में छिपे नहीं रह सकते, but we must get behind the enemy's line and pull to safety all those who will respond. परंतु हमें शत्रु की सीमा के अंदर घुसकर उन सबको सुरक्षित बचाना है जो प्रत्युत्तर देते हैं। Of course, this message is directed toward those who have experienced the grace of God. बिल्कुल ये संदेश उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया है। But there may be someone who's listening today who has never known what it means to be set free from the slavery of sin, guilt, and oppression. लेकिन आज हमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सुन रहा होगा जिसने कभी ये नहीं जाना है कि पाप, दोष और प्रताड़ना की दास्ता से आजादी पाना क्या होता है। If you want to have eternal salvation, you can pray with me this prayer. यदि आप अनंत उद्धार पाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना कर सकते हैं। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I am a sinner and I know that I cannot reach heaven on my own strength. मैं एक पापी हूं और मैं जानता हूं कि मैं अपने आप स्वर्ग नहीं जा सकता। Please forgive me for all of my sins. कृपया मेरे सब पापों को क्षमा कर दीजिए। I believe that your son Jesus Christ died for my sins. मैं विश्वास करता हूं कि आपका पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। And only by believing and accepting Jesus Christ as my Lord and Savior can I be saved. और केवल यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर ही मैं उद्धार प्राप्त कर सकता हूं। And beginning today, I will follow you with all my heart. और आज से ही शुरू करते हुए मैं पूर्ण हृदय के साथ आपके पीछे चलूंगा। Amen. आमीन। If you have prayed this prayer with me, would you write to us and let us know? यदि आपने मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना की है तो क्या आप हमें पत्र लिखकर बताएंगे? Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।